The Radiant International School wishes all my dear parents and my dear kids a very good morning. So today in maths we are going to start with chapter number 3, fractions. Now we are going to learn what are fractions. Fractions means whole. See, यहाँ पे जो एप्पल ड्रॉ किया है वो होल है. उसको अगर हम बीच में से 2 पार्ट्स कर देंगे तो these are going to be called as fractions. ओके? किसी भी पूरी चीज को अगर हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसे हम बोलेंगे fraction of a whole. See, can you read the sentence? Wholes and fractions. A complete or a full object is called whole. एक पूरी चीज को हम whole बोलते हैं. Fractions are equal part of a whole. मतलब पूरी चीज के दो इक्वल पार्ट, लेकिन एक छोटा या बड़ा नहीं चलेगा, दोनों पार्ट सेम साइज के होने चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे फ्रैक्शंस. सो पेज नंबर 111 पे हम पहली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 की. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाफ वाटरमेलन और हाफ वाटरमेलन को मिला के हमें क्या मिलेगा, एक पूरा होल वाटरमेलन. ओके, नाउ वी हैव टू सिमिलरली मैच द अदर फ्रूट्स विद द हाफ ऑफ देम. Now this is a half of one orange, so you have to match to the other half to make a whole. Similarly, we are going to match the pear with the other half of the pear to make a whole. In the same way, we are going to match the half papaya to the half papaya to make a one whole papaya. Okay, this was a small activity to show that two halves of same equal size and quantity makes one whole. Okay, now we'll move on to page number 112. So here there is different types of fractions. Now can you see a whole circle? If we divide this whole circle into 2 equal parts, then each part is called half. What it is called? It is called a half. See, now I have one circle. If I divide this circle into 2 equal halves, then it is called half. Half of the circle. Can you see? This is one circle, but I have divided this circle into 2 parts. तो ये एक पार्ट को हम बोलेंगे half. 2 halves makes one whole. See, यहाँ पे भी वही लिखा है. This circle is divided into 2 equal parts. Each part is a half. A whole, half and half. 2 halves make one whole. The half is always written as 1 as a numerator and 2 as a denominator. Okay? 2 मतलब number of equal parts. यहाँ पे कितने parts बने थे? तो 2 parts बने थे. और अगर हमें सिर्फ एक ही पार्ट को लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 1 of 2. Understood? That is why it is written as 1 upon 2. Now we are going to move on to the other 1/3. This circle is divided into 3 equal parts. Each part is 1/3. So now again for this example I have one circle and I have divided this circle into 3 equal parts. Now see this. The circle has been divided into 1, 2 and 3 equal parts. Now if I join each 3 part, I get a one whole. But if I separate these 3, I get 3 parts. Okay, so now read this. This circle is divided into 3 equal parts. Each part is
1/3। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक सिंगल पार्ट को हम बोलेंगे 1/3। ओके, अ होल इज डिवाइडेड इनटू 1/3, 1/3 and 1/3. Okay, and 3 1/3 makes one whole. 1/3 is written as 1 as a numerator and 3 as a denominator. Now we'll move on to the fourth one. Now see, this is one circle. Okay, this circle is divided into 4 equal parts. Now see this, 1, 2, 3 and 4. Now each part is called 1/4. Why? Because the equal parts are 4 and they are divided into 4 equal parts of one whole circle. Okay, it is called a quarter or 1/4. Each part is called 1/4. It is also called as quarter. Okay, one whole circle is divided into 4 equal parts. So each part is called 1/4 and 4 1/4 makes one whole. Okay, 1/4 is written as 1 as a numerator and 4 as a denominator. 3/4. 3 out of 4 equal parts of the circle are called 3/4. Why 4? मैंने क्या बोला, जितने पार्ट्स है ना उसको हमें डिनोमिनेटर मतलब नीचे लिखना होता है और न्यूमरेटर मतलब ऊपर लिखना होता है। तो अगर हमें यहाँ पे एक सर्कल के 4 पार्ट्स दिए हैं और उसमें से मैं अगर एक पार्ट को निकाल दूं तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेंगे 3 पार्ट्स। तो उसे हम ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, 3 एज अ न्यूमरेटर एंड 4 एज अ डिनोमिनेटर। मतलब ये बचे हुए पार्ट को ही हमें देखना है, यहाँ पे जो है उसको नहीं, यहाँ पे ये मिसिंग है। लेकिन कितने पार्ट्स है, तो कि 3 पार्ट्स है और टोटल कितने पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स। अंडरस्टूड? सो दिस इज कॉल्ड 3/4. 3 out of 4 equal parts of the circle are called 3/4 और 3 quarters. ओके, एक को हम क्वार्टर बोलते हैं, वैसे कितने क्वार्टर है, तो 3 क्वार्टर्स है। और क्वार्टर मतलब 1 2 3 4. ओके, 3/4 is written as 3 as a numerator and 4 as a denominator. Now we are going to learn how to solve the exercise. Exercise number 3.1, page number 130. So question number A, color half. See, 1 न्यूमरेटर है, यहाँ पे न्यूमरेटर देखा मैंने लिखा, इसके नीचे 2 वो डिनोमिनेटर है, इसको हम बोलते हैं हाफ। तो हाफ मतलब 2 पार्ट में से हमें सिर्फ एक पार्ट को दिखाना है, बराबर। तो यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर्स थे, उसमें से एक स्क्वायर को ही कलर किया है, वैसे ही हमें सेकंड और थर्ड पिक्चर में करना है। 2 पार्ट में से सिर्फ एक पार्ट को हाईलाइट करना है। तो आप कलर भी यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे पेंसिल यूज करके शेड करके बताती हूँ। तो दिस पिक्चर इज शोइंग हाफ, मतलब 2 पार्ट में से एक पार्ट ही हाईलाइटेड है। यहाँ पे भी अगर मैं एक पार्ट को कलर कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2 पार्ट में से 1 पिक्चर इज हाईलाइटेड। ओके, बी, कलर 1/3 ऑफ ईच शेप। 1/3 मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 3, तो 3 पार्ट्स है, उसमें से सिर्फ एक ही पार्ट को हमें हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे एक किया है, तो ये सेकंड और थर्ड में भी हम वैसे ही करेंगे। ये हो गया 1/3, 3 पार्ट में से सिर्फ 1 पार्ट को हाईलाइट किया है, तो दिस इज 1/3। यहाँ पे भी हम कोई भी एक पार्ट को कलर कर देंगे, तो अगेन दिस इज शोइंग 1/3. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी, कलर 1/4 ऑफ ईच शेप. अभी 1/4 मतलब 4 पार्ट्स में से हमें सिर्फ 1 पार्ट को शेड करना है. कैन यू सी 4 स्क्वेयर्स आर देयर.
but one square is highlighted. So in the same way there are 4 squares, we will only shade any one. आप नीचे वाला भी कर सकते हो, कोई भी एक, वरना ऊपर वाला, any one of 4 squares. Now again 1, 2, 3 and 4 parts of one circle. We are going to shade only one to show 1/4. Okay. Now color 3/4 of each shape. 1, 2, 3, 4. मतलब देखा आपने नीचे डिनोमिनेटर मतलब इक्वल पार्ट्स होते हैं, और न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले नंबर को देख के हमें पता चलेगा कि हमें कितने पार्ट को कलर करना है. अंडरस्टूड. तो हमें 3 पार्ट्स को कलर करना है. कितने पार्ट में से? 4 में से. तो यहाँ पे देखो 4 में से 3 को कलर किया है, वैसे ही यहाँ पे 4 में से हमें 3 पार्ट्स को कलर करना है. ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 पार्ट्स. दिस इज होमवर्क, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. ओके. Write the fractions for the shaded parts. See now this question is different. यहाँ पे हमें shading दी गया है और हमें उसको read करना है. You have to read the part. यहाँ पे see easiest way to read the fraction for the given picture is look at the total parts in the picture. यहाँ पे कितने parts बनते हैं? यहाँ पे देखो कितने parts थे, तो 1, 2, 3, 4 triangles थे. तो उसने पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 लिखा और कितने पार्ट को कलर करके बताया है? 1 पार्ट को. तो उसे हमें ऊपर न्यूमरेटर में लिखना है. यहाँ पे जो लाइन है उसके ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. ओके. सो ऑलवेज काउंट द नंबर ऑफ पार्ट्स फर्स्ट एंड राइट द डिनोमिनेटर and then look at the picture carefully to find which part is shaded, to find the numerator. Now how many parts are there? So 2 parts. So we are going to write here 2. How many parts are shaded? Only 1 part. So we are going to write here 1. Easy. Now count the parts. 1, 2, 3, 4 parts are there. Now which parts are shaded? How many parts? 1, 2, 3. So we are going to write here 3. Now again look at these pictures. You have to similarly look at the pictures carefully. Write the denominator first and write the number of parts shaded. All these 4, 5 and 6 are homework. Now fractions दूसरे प्रकार के भी होते हैं. यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमें फ्रैक्शंस दिया गया था. अब हम बहुत सारी क्वांटिटी में सेम ऑब्जेक्ट है, उसको हम डिवाइड करके, अगर डिवाइड करेंगे तो उससे भी हम फ्रैक्शंस बोल सकते हैं. तो उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन. अ कलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ होल. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ बलून्स, a collection of mangoes, a collection of eggs. Okay. A collection too can be divided into equal parts or fractions. Okay. कलेक्शन को भी हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ना. मम्मा अगर आपके लिए बहुत सारे बनाना लेके आई और आपके फ्रेंड्स घर पे आए हैं तो आप वो फ्रूट को इक्वली डिवाइड करके खाओगे ना. तो हमने डिवीजन वहां पे भी किया है ना. तो ऑब्जेक्ट्स को भी हम इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसे हम बोलेंगे फ्रैक्शंस. शो 1/2, 1/3, 1/4 and 3/4 fractions of this collection of 12 mangoes. अभी यहाँ पे देखो तीनों पिक्चर में 12 मैंगोज ही है, लेकिन एक पिक्चर में 12 मैंगोज को 2 में डिवाइड किया है. एक ग्रुप में 6, दूसरे ग्रुप में 6. बराबर. तो उसे हम क्या लिखेंगे? तो कितने ग्रुप में पहले डिवाइड किया वो देखो, 1, 2, तो उसको नीचे लिखना है. बराबर. तो एक पार्ट को हम बोलेंगे हाफ. देखो यहाँ पे हाफ लिखा है, यहाँ पे भी हाफ लिखा है. वैसे ही दूसरे पिक्चर में देखो 12 मैंगोज को ही 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है. 1, 2, 3, 4 वाला 1 ग्रुप, अगेन 1, 2, 3, 4 वाला 1 ग्रुप, 1, 2, 3, 4 वाला द थर्ड ग्रुप. 1, 2, 3 ग्रुप्स.
तो हमें डिनोमिनेटर में लिखना है 3, लेकिन एक ही पार्ट को अगर हम हाईलाइट करेंगे तो हमें लिखना है 1/3. ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर. देयर आर अगेन 12 मैंगोज. ओके, 12 मैंगोज को उसने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बराबर. और 4 पार्ट्स में कैसे? एक को 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सबको 3-3 करके 4 ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया. लेकिन अगर हम एक ही ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हमें लिखना है 1/4. लेकिन हम ये 3 ग्रुप की बात करेंगे तो हमें लिखना है 3/4. ओके, सी in the same way we are going to solve the exercise number 3.2. Write the So we are going to start exercise number 3.2. Write the number of parts into which each collection is divided. Write the fraction for each part. Each part मतलब हमें जितने पार्ट्स बने हैं ना उसमें से सिर्फ एक पार्ट का फ्रैक्शन बनाना है. बाकी सबके तो सेम ही हो गए बिकॉज each collection is divided into equal parts. Okay, so let us start with the first one. Now there are collection of strawberries and the collection of strawberry is divided into 4 parts. Can you see 4 parts? तो ये एक पार्ट का हमें फ्रैक्शन बनाना है. तो यहाँ पे क्या दिया है? सबसे पहले क्या लिखा है कि द कलेक्शन ऑफ स्ट्रॉबेरी इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. अभी इसका फ्रैक्शन अगर हम बनाएंगे तो 4 will be the denominator and 1 will be the numerator. Why 1? Because ये पूरे स्क्वायर में से स्ट्रॉबेरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और हम सिर्फ एक पार्ट की बात कर रहे हैं. अंडरस्टूड? और वो एक पार्ट के अंदर कितनी स्ट्रॉबेरी है? 1 स्ट्रॉबेरी, तो 1/4. ओके, यहाँ पे हम अगर देखें तो देयर इज अ फैन. वो हैंड फैन आता है ना वो, और उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2 ग्रुप्स में. दिस इज 1 ग्रुप एंड दिस इज द अदर ग्रुप. तो हम पहले क्या लिखेंगे? हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स? 2 पार्ट्स. एंड अगर हम एक पार्ट के बारे में बात करेंगे तो भी हमें क्या लिखना है? 2 as a denominator. And what will be the numerator? Numerator will be 1. क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक के बारे में बात करें तो हमारे पास 2 पार्ट्स है, 2 ग्रुप है ना. और 2 ग्रुप में अगर हम एक ग्रुप के बारे में 2 ग्रुप को मिलाएंगे तब जाके एक पूरा होल बनेगा ना. तो ये हाफ हाफ हो गया. अंडरस्टूड? नाउ विल मूव ऑन टू द 5th वन. यहाँ पे उसकी बाजू वाले पिक्चर में यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 पार्ट है. यस और नो? सो हम 2 इक्वल ग्रुप्स लिखेंगे. अगर हम एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे डिनोमिनेटर एज 2 एंड इफ वी आर टॉकिंग ऑफ 1 पार्ट तो 1 पार्ट प्लस 1 पार्ट विल मेक 1 होल. तो हम यहाँ पे इसके बारे में बोलेंगे तो हाफ आएगा. 1 as a numerator, 2 as a denominator. Now look here. There is a collection of flowers and these flowers are divided into 3 groups. Yes or no? So, तो हम लिखेंगे 3 equal parts. Denominator will be 3. And if we are talking about only 1 part, so we are going to write how many? We are going to write 1/3 because we are talking about only 1 part of the collection. Now look here. There is collection of candies and the collection of candies are divided into 3 groups. So 3 equal parts. So denominator will be 3. And if we are talking about only 1 part, it will be 1/3. Okay. Again, there is a collection of bees. And how many parts they are divided into? 4. So 4 equal parts. So 4 will be the denominator. And if you are talking about only 1 part, it will be 1/4.
Now question number B. The fraction is already been given. You have to look at the fraction and divide the objects and then color. So 1/4. तो सबसे पहले हमें ये पूरे पिक्चर में से सभी लीव्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, ये 1 पार्ट, ये 2, ये 3 और ये 4 हमने डिवाइड कर दिया 4 इक्वल पार्ट्स में. और हमें क्या बताना है? 1 पार्ट. तो हम ये 2 लीव्स को कलर कर देंगे. तो हो गया ना, 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट को हाईलाइट करना है. तो हमें ये 1 पार्ट के लीव्स को शेडिंग दे दी. सिमिलरली यहाँ पे 1 इज अ न्यूमरेटर, 2 एज अ डिनोमिनेटर. उसे हम क्या बोलते हैं? हाफ. तो हमें ये पूरे पिक्चर को हाफ में डिवाइड करना है. तो वी आर गोइंग टू ड्रॉ लाइन इन बिटवीन, 3 दिस साइड एंड 3 दिस साइड. नाउ टू शो ओनली हाफ, एक ही हाफ पार्ट को हाईलाइट करने के लिए हम ये 3 बलून्स को शेडिंग कर देंगे. अंडरस्टूड? इन द सेम वे योर can you see the collection of balls? We have to divide them again into 4 parts. So we will draw 1, 2 and 3 lines to divide them into this 1 part, 2, 3, 4 parts. And 3/4 मतलब 3 को शेड करना है, 3 पार्ट्स को. तो हम इसको भी कलर करेंगे, ये 1 पार्ट को, ये 2nd पार्ट को कलर करेंगे और ये 3rd पार्ट को कलर करेंगे. ये इस पार्ट को हम कलर नहीं करेंगे. नाउ वी हैव टू डिवाइड देम इनटू 3 पार्ट्स. सो 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट. एंड वी हैव टू शो ओनली 1 पार्ट हाईलाइटेड. तो 1/3 बनेगा. तो उसके लिए हम ये फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट पार्ट को कलर कर देंगे. ओके, तो दिस विल शो 1/3. Okay, so this chapter is very easy. You have to practice very nicely at home to know how to identify the denominator and numerator. I hope this video helps you to solve all your queries. Stay home, stay safe.